Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So I'm just sharing the PowerPoint presentation to you. Yes, the PPT is visible. Yes, sir. So in the last class, we have done a numerical on total steps of the finite element method. So in this class, I am giving you a numerical again. So let me change. So first, I am giving you the diagram of the spring connection. So that diagram is given somewhat here. This is a fixed support. This is a spring having a spring constant K. Then there is another spring having a spring constant K. One more spring constant K. Similarly, there are total 5 springs. So this is again K, and this is again K. So if I'm numbering the nodes from here, so this is the node number 1, this is the node number 2, this is node number 3, node number 4, or you can say the node number is 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 is the last node. So how many springs are there? Springs are 1, 2, 3, 4. Only 4 springs are there. It means this portion is not there. This portion is not there. Sir. So one more spring, that is K, and this is the last node 5. Right. So the spring constant for every spring is same, that is K, and K is equal to given 200 kilonewtons per meter. So K is given 200 kilonewtons per meter. Now this point 5 is given some displacement. It is given some displacement by some force. The force, you can say that force is F5x. F5x, and this is a fixed support over here. This is a fixed support over here. So this point can be given the displacement delta equal to this much. Displacement delta is given this much. So this point can be extended up to this fixed support. So this node number 5 can be extended up to here. So this is also node number 5. So this is delta, and delta is given around 20 mm. Delta is given 20 mm. So this delta means you can say it is U5. So U5 is 20 mm. What is U1? U1 is 0 because it is a fixed support. And what about U2? What about U3? What about U4? They all will be the non-zero values. U2, U3, U4. So the question is, for the spring assemblage,
find the global stiffness matrix. So what we have to find? First one, the global stiffness matrix, capital K. You have to find the global stiffness matrix. बताइए कितने लोग फाइंड कर सकते हैं आप में से? सभी का आंसर यस होना चाहिए. कौशल यादव have given the response. So all of you can find the global stiffness matrix. Yes, Mr. Akash. Yes, sir. है ना, सभी पता कर सकते हैं ना. Second point is the displacements of the node 2 to 4 means you have to find U2, U3 and U4. ठीक है, U1 is given, U5 is also given, U5 is 20 mm. So U2, U3, U4 is the question mark. तो इसको कितने लोग फाइंड कर सकते हैं? हाँ ना बोलते रहिए. सेकंड पॉइंट, सभी लोग कर सकते हैं फाइंड, है ना. कौशल यादव का रिस्पॉन्स आ गया है. यू ऑल ऑफ यू कैन फाइंड, है ना, क्योंकि हमने क्लास में जो न्यूमेरिकल किया उसमें ये सब चीजें करी हैं. और इसके बाद हमें चाहिए द लोकल एलिमेंट फोर्सेस. द थर्ड पॉइंट इज द लोकल एलिमेंट forces. So this is the question for you, and take it as assignment and submit me on the WhatsApp. Take it as an assignment and submit me on the WhatsApp. कर सकते हैं सभी लोग या नहीं, ये बताइए. यस और नो. कोई डाउट है तो बोलिए, अभी करके दिखाते हैं दोबारा. कर सकते हैं. कर सकते हैं ना, तो इसे करिएगा. मैं आपको आंसर्स बता देता हूं ना, so that you can match your answers. So सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, है ना, उसका आंसर क्या होगा. तो प्लीज राइट डाउन द आंसर फॉर द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स. तो जरा बताएंगे ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? एनी वन ऑफ यू, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स? कितने का मैट्रिक्स होगा? 4x4 का होगा ना? 4x4 नहीं होगा. चेक करिए कितने का होगा. देखो, हाउ मेनी नोट्स आर देयर? So 5 5 by 5. Yes, 1 2 3 4 5. 5 notes are there. So number of the notes is 5. That's why the size of the stiffness matrix will be 5 by 5. तो आपको 5 by 5 है, तो उसमें आपकी कितनी रोज आएंगी? 5 रोज आएंगी, 5 कॉलम्स आएंगे, है ना. स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो फर्स्ट लाइन इज 200 minus 200 0 0 0. ठीक है, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम भी यही होगा, -200 0 0 0. स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, then it is a symmetric matrix. So the second line is -200 400 -200 0 0. Column will be this much, -200 0 0. And third line is 0 0 -200 0 -200 400 -200 0. And fourth line is 0 0 -200 400 -200. And the last line is 0 0 0 -200 plus 200. Okay. So this will be the 5 by 5 matrix, and this is the answer for the global stiffness matrix, है ना. आप लोग कर लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, है ना. इसका या तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए. So this is the final answer for the global stiffness matrix. Okay. And what is the unit for this? इसका यूनिट क्या होगा बताइए जरा. ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स की एक यूनिट होगी, है ना. So what will be the unit? Anyone? What will be? kilonewton per mm. किलो न्यूटन पर mm millimeter. mm. देखिए ध्यान से देखिए,
हमें के की मीटर होगा सर। है 200 किलो न्यूटन पर मीटर, यस सर, मीटर है ना, मीटर दे रखा है और हमने के को ही तो यूज किया है इसमें, है ना, एवरीथिंग एवरीवेयर इज के का ही प्लस माइनस है, सो दैट्स व्हाई द यूनिट विल बी किलो न्यूटन पर मीटर, the unit for the global stiffness matrix. Now come to the other values. So the answer for the displacements. So displacements at the node U2, at the node 2, at the node 3 and at the node 4, आपके जो आंसर्स आएंगे that will be 0.005 मीटर, ठीक है, 0.001 मीटर, 0.015 meter. These will be the answers for the displacements. Okay, this will be the answers for the displacement. अच्छा, यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा, because this delta has been given in mm. So U5 is given in mm, so in meters it will be 0.020 meter. So during calculations you use U5 equal to this value, है ना, for the symmetry purpose, because this is given in kilonewton per meter, that's why you have to use displacements in meters only. Now convert this delta into meter, use it, and then find U2, U3, U4 with unit as meter. So first answer is over, second answer is over. Now the third answer, the local element forces. The local element forces, है ना। एक इससे पहले आपको एक और चीज है इसमें, ग्लोबल फोर्सेस, ग्लोबल फोर्सेस ये भी निकालना है, चार चीजें हैं, है ना, ग्लोबल फोर्सेस. So how will you find the global force? At point number 1, the force is F1x. It is basically the reaction force. At point 2, the force is how much? बोलिए कितना फोर्स आएगा F2x का? F2x will be 0. Nothing is given over here. F3x will be 0. 0. F4x 0. 0. And F5x, ये इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है और इसको डिस्प्लेसमेंट दिया हमने 20 mm डिस्प्लेसमेंट दिया है नोड नंबर 5 को, ठीक है। तो ग्लोबल फोर्स के आंसर्स जो होंगे तो वो आप नोट कर लीजिए। ग्लोबल फोर्स के जो आंसर्स होंगे, तो ग्लोबल फोर्स इज गिवन बाय F1x आपका जो आएगा दैट इज -1 किलो न्यूटन, -1। F2x, F3x, F4x कैलकुलेशन करेंगे सब 0 0 ही आएंगे, है ना। आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी 0 ही आएंगे और वैसे भी 0 है। और F5x will be +1. So these are the answers for the global forces. The unit is kilonewton. Because the stiffness is given in kilonewton, so force is in kilonewton. So this is the answer for the global forces. Now the answer for the local forces. So how many elements are there? बताइए कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? हमारे क्वेश्चन में how many elements are there? 4. Elements are 4. So we have to write the local equation 4 times. We have to write the local equations 4 times. First for the element 1, then for 2, then for 3, then for 4. So when you write the local equation for the element 1, so this is your element 1. This is element equation for the element 1. You will find F1x 1 and F2x 1. ठीक है। तो जब आप फर्स्ट एलिमेंट के लिए लिखेंगे तो आपके आंसर्स जो आएंगे
वो f1x1 और f2x1 के लिए आएंगे. When you will write the local equation for element 2, then you will find the answer for, बताइए तब आपके आंसर्स किसके लिए आएंगे, बताइए बच्चों. सर F2x2 और F3x2. यस, वेरी गुड. तब आपके जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे f2x2 और f3x2. वेरी गुड. When you will write the local equation for element number 3, then you will get the answers for F3x3, f3x3 and F4x3. very good. Similarly, when you will write for 4, you will get the answers for f4x4 and f5x4. ठीक है. तो आपको टोटल कितने आंसर्स मिलने वाले हैं? पहले केस में 2, दूसरे केस में 2, तीसरे केस एलिमेंट के लिए 2, चौथे एलिमेंट के लिए 2, यानी कि टोटल आपको 8 आंसर्स मिलने वाले हैं. ठीक है ना. तो मैं आपको वो 8 आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा जब आप सॉल्व करेंगे. तो पहले f1x f2x ये एलिमेंट 1 के लिए होंगे. फिर जो है f2x f3x ये एलिमेंट 2 के लिए होंगे, है ना. देन f3x f4x ये एलिमेंट 3 के लिए होंगे. सिमिलरली f4x f5x ये आपके एलिमेंट 4 के लिए होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 answers. So the first and second answer will be -1 and +1. -1 and +1 unit is kilonewton. Third and fourth answer will be -1 and +1. Again the unit is kilonewton. For third element, the answer is -1 and +1. Again the unit is kilonewton. And for the last element, the answers are -1 and +1. Again the unit is kilonewton. Now please note down the answers and match, and then send me the assignment on me WhatsApp. अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए, मेथड बता दिया है ना. आप कर सकते हैं, कुछ खुद करेंगे तो कुछ लर्न करेंगे, है ना. तो इसको करके भेजिएगा, है ना. टेक इट एज असाइनमेंट. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो हम फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे अगली चीजों पे जा रहे हैं. ठीक है, चलिए मैं इसको फिलहाल स्टॉप शेयर करता हूँ. So I am again sharing the PPT file. Visible. So थोड़ा सा भी उस पे आते हैं, हल्का सा ऑप्शंस. देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट है, दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2. तो सेफ फंक्शंस क्या क्या होते हैं? n1 और n2 यही होते हैं ना सेफ फंक्शन. बताइए, हमने सेफ फंक्शन के बारे में थोड़ा तो पढ़ा है ना पहले. n1 और n2 क्या वैल्यू आई थी n1 और n2 की हमारी?
कोई बताए क्या वैल्यू, क्या शेप फंक्शन आया था? इफ दिस एलिमेंट इज लीनियर, तो लीनियर एलिमेंट के लिए हमारे शेप फंक्शंस क्या क्या आए थे, किसी को याद है? थोड़ा इंटरेक्शन करिए, मतलब नहीं याद है तो नहीं, कोई बात नहीं। कुछ याद है? हमने N1 N2 जैसे कोई पढ़ी भी थी या नहीं? सर 1 माइनस एक्स बाई एल हाँ, और एंड दूसरा आता है एक्स बाई एल। एक्स बाई एल, वेरी गुड। तो हमने पढ़ा था 1 माइनस एक्स बाई एल और एक्स बाई एल। अब इसमें एल क्या है? लेंथ ऑफ द एलिमेंट, है ना? एल जो है वो लेंथ ऑफ द एलिमेंट है, और एक्स जो है वो एक्स डायरेक्शन है, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो n1 इज 1 माइनस एक्स बाई एल, n2 इज 1 एक्स बाई एल। तो मान लीजिए कि मैं कोई लीनियर एलिमेंट ले लूं, ठीक है, और यहां के लिए कोई एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे दूं x1, और यहां के लिए मैं आपको कोई एक्स कोऑर्डिनेट दे दूं x2, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं आपको देता हूं x1 इक्वल टू 25। कितना दे रहा हूं मैं आपको? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 25 है, 25 यूनिट्स, जो भी यूनिट हो, और x2 की वैल्यू जो है वो 50 है। कितनी है? 50, राइट। अब एक तीसरा पॉइंट है, क्या है? एक तीसरा पॉइंट है, मान लेते हैं वो मिडिल पॉइंट है। इस मिडिल पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, जरा बताइए। सपोज दिस पॉइंट इज 3, देन x3 विल बी हाउ मच? कितना होगा? 37.5। कितना? 37.5। 37.5, 37.5, है ना? तो इसके लिए x3 37.5 हो जाएगा, राइट। तो अब मुझे जरा बता सकते हो कि सेफ फंक्शंस की वैल्यू क्या क्या होंगी? पॉइंट 1 के लिए, पॉइंट 2 के लिए, पॉइंट 3 के लिए, टेक टाइम फॉर 2 मिनट्स, निकालिए। पॉइंट 1 के लिए, पॉइंट 2 के लिए, पॉइंट 3 के लिए सेफ फंक्शंस की क्या क्या वैल्यूज है? सब लोग करें, 2 मिनट का जीरो सेशन है। अपने फर्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया क्या अभी?
हाँ बताइए कौशल यादव, क्या कहना चाह रहे हैं? सुन पा रहे हैं ना? मुझे मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। आपने रेज हैंड किया है ना कौशल यादव, बोलिए जरा। किसी का आंसर आया तो प्लीज बताइए। एल को अज्यूम कर लीजिएगा, जो भी अज्यूम करना चाहें, या एल के फॉर्म में आंसर देना चाहें तो एल के फॉर्म में दे सकते हैं। हाँ जी, हो पाया कि नहीं? फॉर नोड 1 है ना, पहले नोड 1 के लिए काम करिए। तो n1 का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस एक्स बाई एल। सो 1 माइनस एक्स, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? 25 25। है ना, 25 डिवाइडेड बाई एल। व्हाट इज एल? एल इज x2 माइनस x1 25। है ना, 25 हो जाएगा। तो ऐसे निकाल सकते हो ना x2 माइनस x1 से। यस सर। तो 50 माइनस 25, ये कितना हो गया? 25 ही हो गया, है ना। सो इट इज 25। सो दिस इज 0, basically not 0, it is 1. So n1 is 1 and what is n2? It is सर the जीरो ही n2 होगा। जीरो आएगा सर। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x by l है ना, n2 is x by l. So कैसे करोगे अब ये? सर ये पहला वाला n1 इज इक्वल टू 0 होगा। ये 0 आएगा ना, 1 minus 1 is 0. So this is 25 by 25. So 1 हो जाएगा। this is 1. 0 and 1 है ना। For node 2, for node 2 यदि बात करें क्या होगा और n2 क्या होगा, है ना। n1 is 1 by 1 minus x by l. Now the x coordinate is 50, l is 25. So it is 1 minus 2, so it is minus 1. And n2 is given by 2 x by l. n2 क्या होता है? x by l. So it is 50 by 25। by 25, it means plus 2. And for node 3, for node 3, 1 minus n1 is again 1 minus x by l. So now the x coordinate is 37.5 divided by 25. Solve it.
-0.5 कितना -0.5 -0.5 और n2 x by 37.5 divided by 25 1.5 हाँ 1.5 1.5 these are the answers for the shape functions for the different nodes. तो ये ऐसे निकाल सकते हैं ना. तो अभी क्या ना ये हम पढ़ रहे हैं x के फॉर्म में. In the next class we are going to study the zeta coordinates. We will work on the zeta coordinates. है ना. Zeta coordinates पे काम करना is much easier. It is very much easier to work on zeta coordinates. तो zeta coordinates में हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे x1 की वैल्यू 25 है, तो ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है. इस पॉइंट के लिए जीटा वी विल कंसीडर -1 एंड फॉर दिस पॉइंट वी कंसीडर जीटा इक्वल टू +1, है ना. टोटल लेंथ ऑफ द बॉर को हम कंसीडर कर रहे हैं. फॉर जीटा दिस पॉइंट इज जीटा इज -1, फॉर दिस पॉइंट जीटा इज +1. तो नेचुरली बात है कि मिडिल पॉइंट के लिए जीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. तो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग जीटा पे ज्यादा काम करने वाले हैं. जीटा पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और जीटा को थोड़ा डिटेल में समझेंगे. ठीक है. तो इस क्लास के लिए इतना ही. वी आर अगेन ज्वाइनिंग एट 1 PM. ओके, वी आर अगेन ज्वाइनिंग एट 1 PM. थैंक यू. थैंक्स फॉर लिसनिंग.